screen both visible. I mean book page of the book. Is it visible to you on your screen? चलो ठीक है फिर. Visible. Okay, bro. Thank you for confirmation. So we will start. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We started few days before. We started lesson number 4, Ad-Darsur Rabi'u, and we completed part first or part alif of that. Okay, and today there is a part B or part B, ba. Huh? There, it is from. We will start it from the very beginning. This part because we haven't touched it yet. Yesterday we completed the first part. Here is written again. Huh? Al baitu. Here it is al baitu. It is al baitu. Al baitu. There is a definite article with it, that is alif lam. So I will, if I will write it in English, what I will write, it will be the house. Al baitu means the house. If अगर वहां पे खाली होता baitun, baitun means a house, but here is not baitun. Here is not tanween on the last letter of the word. Here is a single zamma. Huh? And it is in the state of what? It is in the state of marfu. It is marfu, right? You know what is marfu. It is already cleared in previous classes. So here now, in this part, we will study two more these harf jar. Yeah, we say in English, we will study two more prepositions in this part B. In the previous part, we covered two prepositions. और वो कौन सी preposition थे? एक था फी और दूसरा था अला. ठीक, फी और अला हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया. फी in English stands for in and Allah stands for on. But in this part, we have to study two more prepositions, two more harfu jar, and it in Arabic they are called harfu jarrin. Okay, and that is min and ila. Min and ila. That is min and ila. That was Allah in the previous one, and it is ila. Min stands for from, and ila stands for to. ठीक है. So now here it is written min al bait. It is actually min. This noon will get connected with lam. Okay, it will become min al bait. So here again, when the harf jar come in front of the noun becomes majroor. Huh? Harf jar ism majroor. We have to remember it like this. Whenever there is a harf jar, ism is always, ism after that will be always majroor, always and will be always till the end of the time. There is no exception on it. I taught you in the previous classes, I taught you certain rules and there were exceptions. But here when the harf jar is there, there will be always then ism majroor. ये हमें ऐसे ही याद रखना है. जैसे हम किसी को ग्रीट करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, वो वहां से हमें क्या जवाब देता है? वालेकुम अस्सलाम. वैसे ही जब भी मैं यहाँ पे बोलूंगा ना हर्फ जर, आपको वहां से बोलना है इसम मजरूर. हर्फ जर इसम मजरूर, हर्फ जर इसम मजरूर. This min, it is harf jar and it will make this al baitu, it is here marfu, it will get changed into al baiti and it will become majroor. ठीक, मरफू मजरूर मंसूब वो हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है. तो it will become minal baiti. This noon will get connected with lam. And what is this alif? It is hamzatul wasl. And hamzatul wasl जब भी बीच में आता है सेंटेंस में, that gets assimilated. Here it was at the beginning of the sentence, so हमने इसको यहाँ पे pronounce किया. But here is now it is in the middle of the sentence. When the hamzatul
vowel occurs in the middle of the sentence, it is assimilated or it is not being pronounced. Now this noon will get connected with lam and it will become minal baiti. Minal baiti. And what is the meaning of minal baiti? It is from the house. Now here is al masjidu. What means al masjidu? Al masjidu means the masjid. Okay, it means the masjid. Here is now ila. Ila is another harf jar. Min is also harf jar. Here is ila. Ila means to. Ilal masjid. Again, this alif of al masjid will get assimilated because it is हमजतुल वसल. इट विल नॉट बी, ये इसको यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करेंगे. हाँ, ये बनेगा इलल मस्जिद. मस्जिद विल गेट चेंज इनटू मस्जिद बिकॉज देयर इज हर्फ जर. I will repeat it again. Whenever there is a harf jar in Arabic, the ism after it or the noun after it is always majroor, is always in the condition of majroor. Here it was al masjidu marfu. It will become here majroor. Al masjid, du into di, tu into ti. Al baytu tu, al bayti ti. अल मस्जिद दु, अल मस्जिद दी. ये याद रखना है. अगर हम ऐसे फिर लिखेंगे ना, इला भी करेंगे फिर नाउन को मार्फू भी रखेंगे, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. हम ये नहीं कह सकते हैं इलल मस्जिद. नो, इट इज रॉन्ग ग्रामेटिकली. whenever there is a harf jar, we have to put a kasra, or in layman terms or in common terms we have to put a zir on the last letter of the noun after it. That is called in the condition of majroor. In the condition of majroor, it will become ilal masjid. So what is ilal masjid now? It is to the masjid. I will check your notebooks also. Okay, I will tell you, send me the snaps of your notebook on my this WhatsApp, and there will be test after this. Completing this lesson 5, I will conduct a test, and after that we will move forward, and that test will be verbal test. Okay, I will ask you the questions about all the things or all the grammar related and all the text which we have covered till now. Now here is now al mudarris and Muhammad. Okay, इनके दो के बीच में अब क्या बातचीत हो रही है. बिटवीन अल मुदर्रिस मीन्स द टीचर एंड मोहम्मद. इट इज द मोहम्मद. इट मे बी ए स्टूडेंट और समवन एल्स. ठीक. अल मुदर्रिस इज टेलिंग हिम, ये इसको क्या बोल रहा है, मन आइना अंत. मन आइना अंत. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन आइना अंत? नो, सॉरी, इट इज मिन, नॉट मन. फॉरगिव मी हियर. इट इज मिन आइना अंत. मन स्टैंड्स फॉर हु, दैट इज हर्फ इस्तिफाम, बट इट इज मिन. मैंने कल भी ये आपको डिफरेंस बोली थी. टुडे आई विल रिपीट इट अगेन. एक होता है मन. ठीक है, वो हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 में कवर किया था मन शायद. हाँ, उसके बाद होता है मिन. देयर इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन फता एंड कसरा. हाँ, मन इज हर्फ इस्तिफाम and it is used to frame or ask questions in Arabic, and it stands for who. Man haza, who is this? पढ़ा था ना हमने lesson 2 में. You just recall all that. Here is now min. In this lesson we are studying min. It is not harf istifham, it is harf jarrin. This man is harf istifham and it is used to frame questions. Min is harf jar or harf jarrin if you will pronounce it properly in Arabic, and it means, min means from. It is from. Here is now the question al mudarris is asking, min aina anta. Min aina anta. अगर वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करो ना, min means क्या को min? Min means from, aina means where, anta means you. तो क्या बनेगी इसकी अब वो ट्रांसलेशन? Where are you from? Where are you from? अब आपके जहन में इधर फिर से नहीं आना चाहिए आर का क्या है यहाँ पे. मैं ये रिपीट करते आया हूँ और मैंने पहले भी बोला है, there are no equivalent words for auxiliary verbs in Arabic.
ठीक, दे आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, और इनका कोई इक्विवेलेंट वर्ड अरबी में नहीं होता है, ये एज पर सेंस फिर हमें खुद इस्तेमाल करने होते हैं जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे किसमें, इंग्लिश में है। इट इज अ क्वेश्चन विच अल मुदर्रिस इज आस्किंग टू मोहम्मद, एंड क्वेश्चंस को हम अभी ग्रामेटिकली एनालिसिस नहीं करेंगे, खाली आप अभी इतना इनको प्रोनाउंस करना आप यहाँ पे सीखो और इनकी ट्रांसलेशन, बिकॉज क्वेश्चंस वी हैव सेपरेट लेसन्स फॉर एनालाइजिंग क्वेश्चंस, राइट नाउ वी विल ओनली analyze the statements, the answers. Okay, ana ana, now Muhammad is replying, ana minal yabani, ana minal yabani, yaban, here also it is, इसका मैप भी यहाँ पे बनाया हुआ है साइड में, आई विल अनसर्कुलेट, हियर इट इज अल याबान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ याबान, अना मिनल याबान, याबान स्टैंड्स फॉर जापान है, अरबिक में जापान को याबान कहते हैं, अना मिनल याबान, अना वो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अना, हमने जमीर पढ़े थे, हाँ जमीर मुनफसिल है, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम हिया हुन्ना, antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, what is the meaning of ana here, ana means I, huh? Min means from, means Japan, so what will be the meaning, ana min al yab, I am Japan। आप इसको करेंगे एनालिसिस, ग्रामेटिकल एनालिसिस, अना इज ए ज़मीर मुनफसिल, ठीक, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है क्या होता है, मुब्तदा इन इंग्लिश सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यहाँ पे मुब्तदा और है, अना मिनल याबान, अना आई एम मिनल याबान, फ्रॉम याबान, अना इज हियर मुब्तदा एंड इट इज मरफू, मुब्तदा मरफू, मुब्तदा मरफू, मिनल याबानी, व्हाट इज मिनल याबानी, याबानी इज इसम मजरूर, सो व्हाट विल बी मिनल याबानी टुगेदर, इट इज खबर है, ठीक, ana is mubtada, min al yabani, min is harf jar, I will repeat it again so that you will remember the analysis. Okay, grammatical analysis of this sentence, ana is a zamir munfasil, and in this sentence it is used as a mubtada and it is a marfu, is it clear, after that is min, min is harf jar, and yabani is ism majroor, why, because after harf jar ism is always majroor, min al yabani is now collectively jar majroor, and it is also shibhul jumla. What is the meaning of shibhul jumla, just like there is a phrase in English and the phrase in Arabic is called shibhul jumla, and it is also khabar, it is also predicate, min al yabani is also predicate, so it is also khabar. Shibhul jumla means resembling like a sentence, which is not a sentence but that resembles, that is similar to the sentence, हमने पढ़ी थी, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में रिपीट भी करता हूँ, बिकॉज आई नो वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड वी आर नॉट गेटिंग मच टाइम फॉर रिविजन, वी आर हैविंग family aside, our duties aside, so I am repeating more and more so that it will stay in your memory. Okay, in ana minal yabani, ana means I, minal yabani means from Japan. What is shubhul jumla here, shubhul jumla means, देखिए अगर हमने sentence की definition पढ़ी थी ना, sentence में हमने क्या बोला था, sentence is a group of words that makes a complete sense. Now again, and sentence in Arabic is called jumla, al jumla to, okay, and phrase in English called shubhul jumla. What is the meaning, if we go, phrase is also a group of words but not having a complete sense. If I will say minal yabani, from Japan, but it doesn't make a complete sense, what is from Japan, who is from Japan, that's not clear here. I am talking only about minal yabani, so it is called shubhul jumla, and it is also a predicate, because whenever there it is jumlatul ismiya, ana minal yabani, because it is jumlatul ismiya. What is jumlatul ismiya, jumlatul ismiya is that sentence which starts with a noun. Ana is here as a noun, no doubt it is a pronoun, but pronoun is also a noun. Okay, it is jumlatul ismiya, and jumlatul ismiya में हम दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं मुब्तदा और दूसरा देखते हैं खबर. So ana minal yabani is मुब्तदा and खबर, ठीक. हाँ, इट इज द कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको इधर बोला ना, ये मैंने लगभग आपको 3 4 5 लेक्चर्स में अलग अलग से पढ़ाया है, अब इसको कंपाउंड इधर करना है सब चीजों को एक साथ. अल मुदर्रिस, नाउ अल मुदर्रिस इज अगेन आस्किंग, नाउ आई विल नॉट राइट, नाउ आई विल नॉट राइट, लिखोगे आप अब खुद, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम
कंज्यूम होता है हमारा, और हमें अब वमिन आइना अंत, वमिन आइना ना, वमिन आइना अम्मारुन, वा इज हर्फ अतफ, ओके, वा इज हर्फ अतफिन, हर्फ अतफिन, एंड इट इज द पार्टिकल ऑफ कनेक्टिंग है, या पार्टिकल ऑफ कनेक्टिंग भी इसको कहते हैं और इसको कंजक्शन भी कहते हैं। वा स्टैंड्स फॉर एंड, जैसे इंग्लिश में एंड होता है, अरबिक में वाह है, वाव के ऊपर जबर है। वा मिन आइना अम्मारुन, एंड वायर फ्रॉम, वायर इज अमार फ्रॉम, एंड और वायर फ्रॉम अमार इज, वायर इज अमार फ्रॉम, Muhammad is now replying, huwa min as-sin, huwa min as-sin. What is seen here? As-sin, sin stands for China, huh? चाइना को अरबिक में अस्सीन कहते हैं या सीन कहते हैं, अस्सीन, हुआ min as-sin, हुआ, why we used हुआ here? हुआ stands for he, and what is हुआ? हुआ is third person singular है, या अगर हम अरबिक में बोलेंगे हुआ किसको कहते हैं, इट इज वाहिद मुजक्कर गायब, ओके। एक तो ये गायब है, यानी कि अल गायब कैटेगरी में आती है ये हुआ, और ये वाहिद है, और ये मुजक्कर है। इधर अमार है, अमार इज ए मुजक्कर है, अमारुन, इट इज ए मस्कुलाइन है, दैट इज व्हाई आई यूज्ड हुआ हियर। हुआ मिन as-sin, he is from China, he is from China, now again al mudarris is saying wa min aina hamidun, wa min aina hamidun, what is the meaning of wa min aina hamidun? Where is Hamid from, या where from Hamid is है, wa min aina hamidun, और हामिद कहाँ से है, हुआ मिनल हिंद, he is from Hindi, Hindi means India, al Hindi, he is from Hindi, Hindi means India। यहाँ पे आपने 3 कंट्रीज के नाम आज सीखे हैं, याबान चाइना, सीन ना, याबान जापान, सीन चाइना, हिंदी इंडिया, ओके। लेकिन आप ऐसे अल याबानी रखना, बिकॉज कुछ कंट्रीज के आगे अलिफ लाम लगता है, ये पहले से ही आया है, ठीक है, तो हम भी यही कहेंगे अल याबानी, अल याबान मीन्स चाइना, अस्सीन, अल याबान मीन्स जापान, अस्सीन मीन्स चाइना, अल हिंद मीन्स इंडिया है। देखिए इनकी फिर से हम करेंगे क्या एनालिसिस। हुआ इज मुब्तदा मरफू, मिनल सीन इज जार मजरूर, शुबुल जुमला खबर। हुआ मिनल हिंदी, हुआ इज मुब्तदा मरफू, मिनल हिंदी इज जार मजरूर, शुबुल जुमला खबर। Now here again Abbas, again Mudarris is saying something here. Let me adjust the screen. यहाँ पे हाँ, Aina Abbasun, Aina Abbasun, Aina means where, Abbasun means Abbas, where is Abbas, where is Abbas। यहाँ पे मोहम्मद दिखता है खाली खराजा, खराजा की मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खराजा? खराजा मीन्स ही लेफ्ट। Aina Abbasun, where is Abbas? और मोहम्मद is replying to al mudarris, okay, मोहम्मद is replying to the teacher, खराजा, खराजा means he left। अब यहाँ पे हमें अभी रुकना है, we have to stop here because here first time the verb got introduced, it is the first time we are seeing verb in Arabic। अभी तक हमने verb 4 lessons में टच ही नहीं किया है, अभी तक हमने verb 4, पिछले जो हमने 3 lessons कंप्लीट किए उसमें हमने अभी verb टच ही नहीं किया। it is the first time this verb got entered in our text, so we have to stop here and we have to study first verb grammatically। what is verb? खराजा is a verb। यहाँ पे अभी रुकना है, बाद में मुझे याद दिलाना, इससे आगे हम चलेंगे। अब हम जाएंगे कहाँ पे, ग्रामेटिकल पोर्शन पे। इतना क्लियर है सबको? मैसेज में ही लिखो एटलीस्ट क्लियर है कि नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? माय सिस्टर निशाता, सब क्लियर हो रहा है ना आपको? माय ब्रदर शौकत एंड माय वन मोर ब्रदर अब्दुल रूफ, आशा क्लियर है। माइक की भी कोशिश करना ऑन करने की, क्योंकि बाद में बीच बीच में कभी मैं कुछ पूछूंगा तो दैट विल बी मच बेटर, उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा।
कह चीज यस पाई पे सह पृछन या कह वन पे गलत गल अकि लट या पे इस वन वो ज्यादा मेमोरी में रहता है उस टाइम। सो यहाँ पे हम अब करेंगे वर्ब। चलो पढ़ते हैं वर्ब्स की तरफ। देखिए ये हमने अभी पढ़ा ना, आईना अब्बासुन खरजा, हाँ? इसमें हमने क्या देखा, इसमें वर्ब इस्तेमाल हुआ है खरजा, जिसकी मीनिंग है ही लेफ्ट। आपको पता है इसमें प्रोनाउन भी है, इसमें हुआ प्रोनाउन भी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप इज माई राइटिंग विजिबल टू यू नाउ? खरजा, खरजा राइटिंग विजिबल, रूट्स ऑफ डॉट डाल दो, दैट मीन्स इट इज विजिबल, वरना नो ही लिखो या वैसे लिखो आप। राइटिंग विजिबल होनी चाहिए बस। चलो ब्रो, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन डियर। कर वो को टीचर इनवाइट, था बह पानस लड़े ब्या टीचर। खरजा, खरजा मीनस ही लेफ्ट। ये बह ही लेफ्ट ना वन, खरजिच मीनिंग ही लेफ्ट। अमुक मतलब गो ना अत मज हुआ तह, मगर हुआ ना अथ क्या यम सात हुआ वो ही यस क्या अरबिकस मज ही इज हुआ। यम सात बह खरजा वन तेल बह दपान अत मज हुआ तह, मगर वायर इज हुआ। खरजा यम सात बह वन खरज होत मा गो ही लेफ्ट, बहुत ना वन ही लेफ्ट, तेल ना ही, ये बह ही कर इस्तेमाल तमुक मतलब गो इसमें हुआ भी है, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन भी है ना। अलगायब वाहिद है मुजक्कर, हुआ इज एक है गायब और है वाहिद और है मुजक्कर है। मगर हियर इट इज हुआ इज जमीर मुनफसिल, हमने पढ़े दे आर 14 है। हुआ इज आल्सो वन ऑफ देम, बट हुआ इज हियर इज नॉट फाउंड बिफोर द वर्ब। तेल गया हुआ खराजा, हुआ खराजा, मगर हुआ ना ये बहुत दपान खराज होत गो ही लेफ्ट, देन व्हाट इज वायर इज हुआ, यह थवन याद है। इन दिस केस जमीर इज सेड टू बी मुस्ततिर, यह नो चीज वनकन गोड लट पर्नावान। अगर समझ नहीं आएगा तो यू डू नॉट नीड टू बी वरी, बिकॉज आई विल कीप इट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक, हुआ इज हियर मुस्ततिर, इसको कहते हैं जमीर मुस्ततिर। मुस्ततिर मीन्स हिडन प्रोनाउन, हाँ, हिडन। मुस्ततिर मीन्स प्रोनाउन, हिडन प्रोनाउन और अंडरस्टूड। आप ऐसे ही याद रखना, हुआ यतनस एट द खराजा, हुआ इज मुस्ततिर, it is called as zamir mustatir, which means hidden pronoun. Pronoun is there but it is hidden, it is hidden. Kharaja is a complete sentence, okay? Never say it is shubul jumla. When I will write only kharaja, it is a complete sentence. He left, because it gives us a complete sense, so it is a sentence. ठीक, kharaja, he left. Here the again I will say, here the pronoun, that is here the zamir huwa is mustatir, is hidden in kharaja, is hidden in kharaja, and it is understood है? अब यहाँ पे चलना है हमें आगे, जो हमें आज पढ़ना था, जो आज का हमें मेन लेसन था वर्ब्स का, क्योंकि मैंने मैसेज भी डाली थी ग्रुप में कि हम वर्ब्स पढ़ेंगे सुबह। वर्ब्स है, वर्ब्स है, सॉरी, वर्ब्स। वर्ब्स को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में तो वर्ब ही कहते हैं। वर्ब क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब? वर्ब सु चीज इंग्लिशस मज युस डिनोट एक्शन करन है। वर्ब डिनोट्स एक्शन, वर्ब डिनोट्स। कितने वर्ब्स हैं इंग्लिश में, है ना? बहुत सारे हैं, है ना? जैसे क्या है, प्ले है, ये भी वर्ब है, हाँ? या बोलिए ईट, या बोलिए स्लीप, या वॉक, बहुत सारे हैं ना, एटसेट्रा। ये एक्शन डिनोट करते हैं। प्ले ये डिनोट करते हैं एक्शन, खेल, हाँ? मगर वेन एवर देयर इज ए एक्शन, देयर इज अ डूअर ऑफ एक्शन। खुद तो कुछ चीज हो ही नहीं सकता ना खुद ब खुद, कोई होता है ना करने वाला, है? कोई तो करने वाला भी होता है ना, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब।
सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, उधर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी होगा। फिर जब वर्ब होगा, जब एक्शन होगी तो डूअर ऑफ एक्शन भी होगा जरूरी। देयर इज समवन हु इज डूइंग दैट, who is doing that action. Verb denotes action. There is always a doer action when action takes place. Okay, there is always a doer of action when action takes place. Verb is called in Arabic, verb को हम क्या कहते हैं? Verb is called fa'alun, 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 and subject of verb is called, and this subject of verb, subject of verb is called fa'ilun, 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 ठीक। अब हम क्या बोलेंगे? अब हमने ये अरबिक में इनके टर्म्स सीखे हैं। वर्ब इज कॉल्ड फायलुन, और शॉर्ट में हम फायल भी कह सकते हैं, एंड मगर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन यही है, फायलुन। एंड सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड फाइलुन, हम इसको कहते हैं फाइल भी, जल्दी जल्दी में, बट द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज फायलुन एंड फाइलुन। ओके, अब हम अगर जाएंगे ना खराजा पे, जो हमने पढ़ा था अभी लेसन में, खराजा में, ओ सॉरी, इधर जो खराजा हमने लेसन में पढ़ा था, खराजा, इसमें जो फैल है ना, फैल, दैट इज फाइल जो है इसमें, सॉरी, द फाइल हियर इज मुस्ततिर, है दिस सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, डूअर ऑफ द एक्शन, है द पर्सन हु लेफ्ट इज हिडन हियर, है डूअर ऑफ द एक्शन इज लिस्ट। नाउ आई विल राइट द फाइल, फाइलुन मुस्ततिरुन, 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 क्लियर? अरबिक में जितने भी वर्ब्स है ना, जैसे मैं कुछ वर्ब्स यहाँ पे बताऊंगा, खराजा इज ए वर्ब, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब्स हैं, जैसे जहबा है, राज्य, इसके जहबा के अलावा क्या है? राजा है, कतबा है, या जलसा है, इसके अलावा है नसरा, जरबा, ये सारे वर्ब्स है। अरबिक में आप पाओगे मोर देन, या इन अरबिक 99.5% वर्ब्स आर ऑफ 3 लेटर्स, ठीक है। खराजा इज ऑफ 3 लेटर्स और 3 रेडिकल्स, आई कैन से ha is one radical, ra is another radical, jim is another radical, only 3 letters are there, ठीक। अगर मैं जहबा की बात करूंगा, जा इज वन, हा इज सेकंड एंड बा इज थर्ड। अगर मैं ऐसी बात करूं किस वर्ब की, किसी भी कोई, कतबा, कतबा, इसमें भी 3 ही है, 3 ही लेटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैं बोलूंगा कि अरबिक में ऑलमोस्ट 99.5% वर्ब्स 3 लेटर वर्ब्स है। बाकी भी है 4 लेटर वर्ब्स भी है, लेकिन वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। और जो हम अभी बुक पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमें खाली 3 लेटर वर्ब्स के साथ डील करना है। वी हैव टू डू नथिंग विद द 4 लेटर वर्ब्स, एंड इवन इफ द 4 लेटर वर्ब विल कम, we will keep that aside till we will reach up to book 2 or book 3, and in that book we will study 4 letter verbs. First we will complete 3 letter verbs, तो ये याद रखना है। in Arabic 99.5% verbs are of 3 letters and 0.5% are of 4 letters, ठीक। नंबर 1, ये एक बात थी वर्ब्स के बारे में। और सारे जो 3 लेटर वर्ब्स है ना, दे आर ऑन द पैटर्न ऑफ फाला, दे आर ऑन द पैटर्न ऑफ, वो क्या होता है पैटर्न ऑफ फाला, वो मैं समझाऊंगा। अभी आप यही याद रखो, जो सारे 3 लेटर्स वर्ब्स हैं वो किस पैटर्न पे है? फाला पे, फाला। अगर आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, सो नो नीड टू वरी, बिकॉज इट इज समथिंग न्यू टू यू, अभी तक हमने ये सुना भी नहीं था। इट इज फाला। चलो मैं थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। फा ला, फा फतहा, आयन फतहा, लाम फतहा, फाला। So all the 3 letters verbs in Arabic follow the fa'ala pattern. What is the, suppose if I will say
फाला पैटर्न, अभी ये बात अभी रहने दो, ये मैं अभी टच नहीं करूंगा, मेरे जहन में आई थी, बट आई विल स्टॉप हियर, इट विल मेक यू कंफ्यूज। इसमें होते हैं थ्री कलिमास, हैं, देयर इज थ्री, देयर आर थ्री कलिमास इन थ्री लेटर वर्ब्स, देयर आर थ्री कलिमास, हैं। जैसे मैं यहाँ पे हैं थ्री कलिमास, मैं इनको थोड़ा सेपरेट करूंगा, हाँ। फा इज वन कलिमा, अनदर इज आइन कलिमा एंड अनदर इज लाम कलिमा, ठीक है। यू गो वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री। खराजा में भी थ्री कलिमाज हैं, खा रा और जा। जहबा में भी थ्री कलिमाज हैं। हर कोई थ्री लेटर वर्ब जो है वो फाला पैटर्न पे है अरबिक में, और इसके थ्री कलिमाज होते हैं। पहले को हम बोलते हैं फा कलिमा, दूसरे को बोलते हैं आयन कलिमा, और तीसरे को बोलते हैं लाम कलिमा। अगर मैं आप खराजा की एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा, तो खराजा में फा कलिमा कौन है, दैट इज खा। एंड व्हाट इज आयन कलिमा इन खराजा, दैट इज रॉ। एंड व्हाट इज लाम कलिमा इन खराजा, दैट इज जीम, ठीक। सिमिलरली जहबा की बात लूंगा, जहबा में फा कलिमा कौन सा है, दैट इज जा। एंड आयन कलिमा कौन सा है, दैट इज है। एंड लाम कलिमा कौन है, दैट इज बा। इसी तरीके से कतबा वर्ब की मैं एग्जांपल लूंगा, कतबा में फा कलिमा कौन है, दैट इज काफ, कैफ। आयन कलिमा इज ता, लाम कलिमा इज बा दियर इन कतबा, ठीक है। सिमिलरली जो भी थ्री लेटर वर्ब आप देखोगे, हर कोई थ्री लेटर वर्ब फाला के पैटर्न पे है, और इसमें थ्री कलिमाज होते हैं थ्री लेटर वर्ब्स में, फा कलिमा, आयन कलिमा, लाम कलिमा, ठीक है। अब यहाँ पे रखना है हमें याद रूल, जो हमें पढ़ना है। रूल क्या है इधर, रूल है फा कलमा और लाम कलमा पे हमेशा फतह होगी बेस फार्म ऑफ वर्ब में, हमेशा फतह होगी फा कलमा और लाम कलमा में। हर किसी थ्री लेटर वर्ब में जो फा कलमा और लाम कलमा होता है, हा? फा कलमा, फा कलमा एंड लाम कलमा, लाम कलमा, इन दोनों पे हमेशा क्या होगी, फतह। मगर बेस फार्म की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ? बेस फार्म आई मीन दिस, बेस फार्म। और यहाँ पे भी जैसे हमने एक एक मिनट यहाँ पे एक सेकंड हम होल्ड करेंगे, जैसे हमने प्रोनाउंस में पढ़ा था ना, प्रोनाउन स्टार्ट्स जमीर मुनफसिल, दे स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड फार्म। यहाँ पे भी वर्ब भी स्टार्ट होते हैं थर्ड फार्म से ही। सो यहाँ पे जो थर्ड फार्म जो होगी ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, दैट इज कॉल्ड द बेस फार्म हियर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलाइन, जैसे फाला, जहबा, कतबा, दे आर ऑल बेस फार्म्स है। बेस फार्म में फा कलमा और लाम कलमा पे हमेशा फतह होगी, इन कॉमन टर्म्स हमेशा जबर होगी, हमेशा हर किसी थ्री लेटर वर्ब में बेस फार्म में हमेशा फतह होती है, ठीक। अब रहा जो बीच वाला कलमा है ना, आइन कलमा, ठीक है, इसी पे एक्शन होती है, इसी पे चेंज होती है। इस पे कभी फतह भी हो सकती है, आयन कलमा पे है, आयन कलमा, इस पे फतह भी हो सकती है, इस पे कसरा भी हो सकती है, इस पे जमा भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक। फा कलमा और लाम कलमा पे हमेशा, जैसे मैं आप लिखूंगा यहाँ पे है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिखाऊंगा, हम धीरे धीरे चलेंगे, बिकॉज ये वर्ब्स को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। अगर इधर थोड़ी वो, इफ विल गेट कंफ्यूज्ड हियर, ये कंफ्यूजन फिर प्रॉब्लम करेगा आगे, है। अब मैं थ्री लेटर यहाँ पे वर्ब्स लिखूंगा, हाँ। ह, र, ज, ओके। उसके बाद में लिखूंगा समिया, समिया मीन्स ही लिसनर, है, समिया, समिया। Now I will write here zahaba, zahaba. Oh, sorry, it is ba directly. Zahaba. Now I will write here karuma, karuma. ठीक। Now I will write here shariba. ये मैंने अलग अलग लिखा, कोई नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, करुमा, हाँ। इसके बाद है शरिबा, शरिबा, हाँ। इसके बाद है बाईदा, बाईदा, बाईदा। चलो इतनी ही करेंगे, हाँ। देखो अगर आप इन सब को देखोगे ना,
देखो खराजा की बात हम करेंगे, इसमें खा फा कलमा है, इस पे फता है। लाम कलमा जीम है, इस पे भी फता है। सीन कलमा यहाँ पे फा कलमा, सीन यहाँ पे फा कलमा है, इस पे भी फता है। आयन यहाँ पे लाम कलमा है, इस पे भी फता है। जहबा की बात करेंगे, जा यहाँ पे फा कलमा है, इस पे भी फता है। बा यहाँ पे लाम कलमा है, इस पे भी फता है। कारोमा की बात करेंगे, का यहाँ पे फा कलमा है, इस पे भी फता है। मीम यहाँ पे लाम कलमा है, इस पे भी फतह है। ऐसे ही देखोगे आप, फर्स्ट फा कलमा और लाम कलमा ऑलवेज कैरी है फतह। देखो चेंज कहाँ पे, सा ये है, यहाँ पे लाम फा आयन कलमा, आयन है। मीम, हियर इज ऑन द मीम, हियर इज कसरा। ऑन द मीम कलमा, हियर इन कारोमा, हियर इज जमा। हियर इज अगेन इन शरीबा, ऑन द मीम कलमा, हियर इज कसरा। ऑन द बईदा, हियर इन मीम कलमा, हियर इज आयन है, हेयर इज कसरा। सो अब हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फा कलमा और लाम कलमा पे हमेशा 3 लेटर वर्ब्स में फतह होती है, एंड इट इज ओनली द आयन कलमा, दैट इज द मिडिल कलमा, विच गेट्स चेंज्ड, विच गेट्स चेंज्ड। ठीक। अ, इतना समझ आया? इसका क्लियर ये सर, इज इट क्लियर? इसके नोट्स बनाना साइड साइड में, वो जरूरी है, हाँ? वो जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है। अगर न समझ आए यू कैन कॉल मी एनी टाइम रिगार्डिंग दिस अरबिक। अरबिक के लिए मैंने खुद को 24 आवर्स ऑन ये अवेलेबल रखा है। इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरीज को कभी भी रेस्पॉन्ड करूंगा। बहुत इजी है, बस जस्ट हैव कंसंट्रेशन। क्लियर जनाब फॉर मी, सिस्टर को भी क्लियर होगा, शी इज़ वेरी ब्रिलियंट। शौकत साहब तो ऑलरेडी इंशाल्लाह इसके पास तो रूप साहब हैं, ये आपस में डिस्कस किया करेंगे बिकॉज दे वर्क एट द सेम प्लेस। शौकत साहब या रूप साहब के बीच में टाई अप बहुत अच्छा है, ये एक दूसरे के साथ कर सकते हैं डिस्कस उधर। it is a blessing for them that they are working together and now they are just learning Arabic together. हाँ, चलो ठीक है फिर। एक एक मिनट ब्रेक जरूरी है ना, ताकि जो हमने अभी तक पिया वो हजम हो जाए। चलो ठीक है। अब हमें जाना है कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स पे है। यथ पतमन दोहन वन गर्दान, conjugation means conjugation means to give different forms to a verb, huh? Conjugation, CONJUGATION, कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स पे जाएंगे हम, हाँ? ज्यादा नहीं कराऊंगा, मुझे पता है, मुझे आपको थकाना भी नहीं है। मैं थोड़ा ही करूंगा लेकिन करना है, हाँ? स्टार्ट करना है आज। आज हमें करना है फिर कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स है। कंजुगेशन मीन्स टू गिव डिफरेंट फॉर्म्स टू ए वर्ब। यहाँ पे लिखूंगा मैं, हाँ? कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स है मीन्स टू गिव, अब हम डिफरेंट फार्मर्स वर्ब्स को देंगे, हाँ? थोड़ा यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, थोड़ी सी कंसंट्रेशन, और आप ये सीख जाओगे और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। और अगर आप यहाँ पे वर्ब सीखोगे ना, इंशाल्लाह आप कभी अरबिक के वर्ब्स नहीं बोलोगे टिल द एंड ऑफ द टाइम, यू विल नॉट फॉरगेट। और कल आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को पढ़ाओगे, देन इट विल बिकम सदका जारिया फॉर यू, ठीक है ना? because it's a noble this knowledge, it is the highest knowledge at the highest सब knowledge से ये अरबिक knowledge जो है, it is the very noble knowledge। और इसमें जितना हम टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, it is also considered as a इबादत। जैसे हमारी इबादत दूसरी होती हैं, दूसरे इबादत होते हैं, वैसे अरबी सीखना भी एक इबादत है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, नीयत, इंसान की जो नीयत है वो दुरुस्त होनी चाहिए कि मैं अरबी सीख रहा हूँ ताकि मैं कल कुरान पाक को अच्छे से समझ पाऊँ। और मैं अरबी इसलिए सीख रहा हूँ ताकि कल मैं दूसरे किसी दूसरे को भी या अपने बच्चों को भी या और लोगों को भी सिखा पाऊँ। अगर ये नीयत होगी, इंशाल्लाह अल्लाह विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस, एंड अल्लाह विल प्रोवाइड यू डेफिनेटली मोर एंड मोर नॉलेज। मेरा ये सब्जेक्ट भी नहीं रहा है अरबिक, मैंने एम.कॉम किया है, उससे पहले मेरा बी.कॉम था। सो ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैंने कभी अरबिक पढ़ा ही नहीं है। ड्यूरिंग माई मास्टर्स मैंने कभी अरबिक पढ़ा ही नहीं है। मैं एकेडमिक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बट मेरा शौक था अरबिक पढ़ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट
आई गॉट लिटिल बिट डेवलप्ड इन अरबिक, थोड़ी सी मुझ में डेवलपमेंट आई अरबिक की, बट मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। चलो अब हम जाएंगे कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स पे। एक्शन टेक्स प्लेस ऑन द आइन कलमा, ये हमें पई है, ये हमें पता है, सॉरी, ये हमें पता है, वी नो इट दैट एक्शन टेक्स प्लेस ऑन द आइन कलमा। फा कलमा एंड ला कलमा, लाम कलमा will always be have fatha till the end of the time, always and always, there is no exception. Fa kalma and lam kalma will always have fatha, and action gets takes place on what? Action gets takes place on only this, ऑन आयन कलमा। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज करूंगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना हुआ, उसके बाद लिखूंगा हुमा, हुमा, जमा हियर, हुआ, हुमा, हुम, then I will write here, here, then I will write here huwa, huma, hum, then I will write here, huma, here, huma, and here I will write hunna। ये आपको बाद में समझ आएगा मैंने हुन्ना इधर क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा, इसमें भी कोई लॉजिक है मेरे पास। हुन्ना, ये हमें सबको पता है ये क्या है। हाँ? अगले कर रिवाइज, मैं लिखना सारी क्या है, दे आर 14, लेकिन मैंने थोड़ी ही लिखे हैं, सारा एक साथ नहीं करवाएंगे, ये हजम ही नहीं होगा, फिर समझ ही नहीं आएगा। इस करो कम कम। हुआ इज, ये जो, ये जो छह है ना, दे fall under the category of al-ghaib, they are third person है। हुआ means he, हुआ means you but two male, whom means they male, two plus whom means they, huh? Sorry, हुआ means he, huma is also means huma means they, whom means they, but what is the difference? We use huma for two and whom for more than two. Here means she, huma also means what? Huma also means they, but for two female, huh? And hunna also means they, but for more than two female, huh? अब यही पे करेंगे हम क्या, कंजुगेशन। चलो चलते हैं कंजुगेशन की तरफ, उठाएंगे खराजा ही पहले। हैं खराजा, हुआ, हुआ मीन्स ही। नाउ इधर लिखेंगे हम खराजा, खराजा, ये हुआ आप कंसिडर मत करना है, ये ऐसे ही रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खराजा? खराजा मीन्स ही लेफ्ट, ही लेफ्ट। हुमा, what will be the what will be now kharaja? It will be kharaja, 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 kharaja means no, it will be kharaja, not kharaja, 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 kharaja means they two left, they two male left, huh? They two masculine, they two male left. Whom means kharaju, kharaja, kharaja, kharaju, kharaju, kharaju. What is the meaning of kharaju? Kharaju, kharaju, kharaju means they left, they more than two people left, huh? खराजा, खराजा, खराजू, उसके बाद है खराजत, हिया के, हाँ? हिया मीन्स शी, हाँ? यहाँ पे लिखेंगे हम खराजत, खराजत, खराजत मीन्स शी लेफ्ट, वो चली गई है। ही इज, इट इज योर वुमन है, मस्ट बी फेमिनाइन। देन इज, then here is huma, what is in kharajata,
kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, then it will be kharajata, kharajata. What is the meaning of kharajata? They two female left. हाँ? इतना ही करेंगे आज, ठीक है। इसके आगे जो हुन्ना है ना, हुन्ना का अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमें हुन्ना के साथ एग्रीमेंट करना है। हुन्ना हमें बोल रहा है कि मैं तो आगे बढ़ूंगा, आगे आगे बढ़ाऊंगा आपके वर्बस को, लेकिन मेरे साथ पहले एग्रीमेंट करो, मैं तब तक नहीं चलूंगा। ये छुन मान नहीं होना। वह अमिस सत एग्रीमेंट कर, सह वन अस पत एग्रीमेंट क्या गो, सुबह करो डिसाइड कि पकवा ब्रो कुन कि न, मगर अस चारा, अस पकुन, अम सुन एग्रीमेंट मान। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इट इज नॉट रिटन इन ग्रामर। हुना ब्रो पकाओ, मगर हुना दपान मे सो गो एग्रीमेंट, मे सो तुम मेरे साथ आप पहले एग्रीमेंट करो, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। इसका एग्रीमेंट क्या है वो हम देखेंगे, या अब अपने लायर को बुलाएगा, ठीक है। इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगे, उसके बाद ये बोल रहा है कि आगे चलने दूंगा। चलो हम अभी यहीं पे रुकेंगे, पहले इसका एग्रीमेंट शाम को देखेंगे। वो सुपान है ये क्या एग्रीमेंट दी में, आफ्टर दैट हम करेंगे इसके साथ एग्रीमेंट, क्योंकि हमें कोई चारा ही नहीं है, हमें वर्ब सीखने हैं, तो हमें होना का मानना पड़ेगा, ठीक है। होना हमें क्या बोलेगा, आप अभी इतना ही याद रखो, अभी हम इतना ही करेंगे। हाँ, खराजा, खराजा मीन्स ही लेफ्ट। वायर इज जमीर हियर, जमीर इज हियर मुस्ततिर, दैट इज हिडन। Zamir is mustatir here. No, yeah, file mustatir. File is here. Doer of the action is the mustatir here. Doer of the action is hidden here in the first one. देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है ना, मैं यहाँ पे भी स्टार मार्क रखूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू वर्ब्स अंडरस्टैंड। इसके बाद ये जो हिया है ना, इसके ऊपर भी मैं रखूंगा क्या, स्टार मार्क। खराजा, खराजा मीन्स ही लेफ्ट। वायर इज ही, वायर इज जमीर, वायर इज फाइल, वायर इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ही इज हिडन, यानी कि जमीर मुस्ततिर, जमीर मुस्ततिर। अगर मैं अब चलूंगा किस पे, खराजा पे, यहाँ पे खराजा पे आप ये देख रहे हो अलिफ, खराजा, खराजा, हाँ? ये रिप्रेजेंट करता है फाइल को। अलिफ इज इक्वलेंट टू हुमा, अलिफ इज इक्वलेंट टू हुमा। इन खराजा अलिफ इज because kharaja is a file, or kharaja is a falun, and this alif is here in addition, and it will represent what, it will represent huma. Alif is equivalent to huma. This alif represents file, right? इसको हम कहते हैं अलिफ मुसन्ना, ये याद रखना है। What is the meaning of kharaja? They two male left. Huh? What is alif now here? This alif, it is called alif musanna. Huh? Alif musanna. Huh? मीम सीन नून हा, हाँ? मुसन्ना, या इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, अलिफ ऑफ ड्यूअल, अलिफ ऑफ ड्यूअल, ठीक। it represents file here, so here zamir is not mustatir, here it is not hidden, because it is with the kharaja, and it is represented by the alif. Alif here is called alif musanna, and it is the alif of dual, alif of two, okay. Because when we will go through the meaning of kharaja, it means they two may left, okay. Now there is kharaju। लेकिन एक बात आप याद रखना, ये जो खरजू है ना, इसके साथ आप हमेशा जब आप ये हुम की बनाओगे ना फार्म, वर्ब फार्म, इसके साथ हमेशा अलिफ लगाना है। इस पे कोई वो नहीं रखनी है, कोई हरकत नहीं रखनी है, लेकिन अलिफ इसके साथ हमेशा रखना है, वाव के अगेंस्ट। मैं रुक थोड़ा इतना दूर, इस वाव के नजदीक ही रखना है, ऐसे। हाँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा ख, खरजू, ये ऐसे ही रखना है। अभी आप इतना याद रखो, इट इज ए स्पेलिंग रूल, ये स्पेलिंग रूल है अरबिक में। है, इतना ही अभी याद रखो, बाकी आगे जाने की अभी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करेंगे। अगर यो है लागू वन तो तेल पे वर्ब इतने, इट्स द स्पेलिंग रूल है। खरजू, उसके बाद है क्या है, खरजत। खरजत मीनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खरजू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खरजू, नहीं अभी तो हमने ये कंप्लीट ही नहीं किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खरजू? खरजू मीनस दे लेफ्ट, they male left, they more than two male left. Here this, yeah,
आई विल टेक अनदर पेन। दिस जो यहाँ पे ये है ना, वाव, जू के साथ, it represents here fa'il. So here is also, it represents here pronoun, or it represents here doer of the action, and it is not also mustatir here. मुस्ततिर दो ही जगह है, खरजा पे और खरजत पे, जहां पे मैंने स्टार बनाया, हाँ, इधर है जमीर मुस्ततिर, बाकी हर किसी की बाकी कहीं पे मुस्ततिर नहीं है। सो यहाँ पे खरजू जो है, खरजू यहाँ पे जो वाव लिखा है लास्ट में, इट रिप्रेजेंट्स फाइल, दिस वाव इज इक्वल टू हुम। ठीक, ये आप ऐसे ही याद रखना है। सो ये जो है, इट रिप्रेजेंट्स हियर, हाँ, इतना ही इसके बारे में हमें याद रखना है। इसके बाद है खराजत, खराजत मीन शी लेफ्ट, शी लेफ्ट, खराजत शी लेफ्ट। अब आप मुझे ये मत बोलना कि ये जो ता इसमें है, इट रिप्रेजेंट्स फाइल, नो, इट डजंट रिप्रेजेंट फाइल। जा जैसे वहां पे जा में अलिफ ने फाइल को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे वाव में, लेकिन यहाँ पे भी खराजत है, मगर दिस ता इज नॉट रिप्रेजेंटिंग फाइल हियर, this ta is not representing doer of the action here. Then what is this ta? This ta is called ta'u tanisi, ta'u, ta'u tanisi, ta'u tanisi, ta'u tanisi, ta'u tanisi. It is the indication that the verb is feminine. It represents or it indicates feminine here. ये फेमिनाइन की निशानी है, ये अलामत इतन फेमिनाइन आसने, यथ कट नाउनन मज क्या पढ़ो, ता मरबूता, मगर वर्ब में हम क्या पढ़ते हैं, ताउतानी सी, ये याद रखना है। ता मरबूता इज द इंडिकेशन इन द नाउन्स दैट द नाउन इज फेमिनाइन, ताउतानी सी इज द इंडिकेशन इन द वर्ब्स दैट द वर्ब रिप्रेजेंट्स फेमिनाइन कैरेक्टर, ओके, या फेमिनाइन, ताउतानी सी, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग हियर द प्रोनाउन, ये याद रखना है। इसीलिए यहाँ पे भी हम कहेंगे प्रोनाउन जमीर इज मुस्ततिर, जमीर मुस्ततिर, ठीक है। जिस ता, ये जो ता है ना, ये हमें बोल रहा है कि डूअर ऑफ द एक्शन इज फीमेल, ये भी ऐसे भी आप याद रख सकते हो, इट इज ताउतानीसी, एंड दिस ता टेल्स अस दैट डूअर ऑफ द एक्शन, जो डूअर है एक्शन का, ये फीमेल है, एक्शन करन वाजिन फीमेल वनकन, ठीक। ऐसे ही है उसके बाद हुमा, खरजता, 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 खरजता की हम जब हम बात करेंगे ना, खरजता की ऐसे ही हम वर्ब्स पढ़ेंगे। हाँ, और एक बात आप याद रखना, जो भी आपको मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ ना, इट इज द कॉपी फ्रॉम, यू नो, वी हैव बुक्स, जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं ना, दे आर आल्सो बीइंग टॉट एट अल मदीना यूनिवर्सिटी। आप अगर आपने बुक्स लाए होंगे, आपने उस पर लिख के भी लिखा होगा, एवरी वीयर फ्रॉम रमजान टू रमजान दिस कोर्स इज बीइंग कंडक्टेड देयर इन मदीना यूनिवर्सिटी। हाँ, और मैं भी वही बुक्स, हम भी वही बुक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये आपको लोकली नहीं मिलेंगे, इसके लिए ये बुक्स आपको परचेज करने होंगे, आपको अमेजोन से परचेज कर सकते हो या आप ऑनलाइन ऑर्डर करना, यू विल हार्डली गेट देम लोकली, बहुत मुश्किल से लोकली मिलते हैं। मैंने खुद भी, जब मैं पढ़ रहा था या जब मैंने लाया ये, मैंने भी अमेजोन से ही ऑर्डर किए हैं। दे आर ओरिजिनली डिवाइज्ड एंड टॉट एट मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो है ना खराजता, खराजता, इसमें आप दोनों चीज आ गए, एक आ गया ताबी खराजता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खराजता, दे टू फीमेल लेफ्ट, यहाँ पे है, इसमें ताबी आ गया, इसमें अलिफ भी आ गया, इसमें ताबी है, इसमें अलिफ भी है। ता इज हियर ताउ तानीसी, एंड दिस अलिफ रिप्रेजेंट्स प्रोनाउन हियर डूअर ऑफ द एक्शन हुमा, अलिफ इज इक्वल टू हुमा, ठीक। इट इज कॉल्ड अलिफ मुसन्ना, अलिफ ऑफ ड्यूअल, जो मैंने ऊपर भी पढ़ाया था खराजा में भी। हाँ, इधर यहाँ पे भी इसको अलिफ ऑफ मुसन्ना ही कहते हैं, अलिफ ऑफ ड्यूअल कहते हैं, एंड दिस ता इज ताउ तानीसी, इट रिप्रेजेंट्स दैट फीमेल, डूअर ऑफ द एक्शन इज फीमेल। इतना हुआ क्लियर। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, यह क्लियर यीजान मे चीज रिपीट कर, यह थोड़ा नो, यह बस थोड़ा मुश्किल गो, तुम करो नोट मेकिंग, पे करो रिवाइज, ये फिर मुश्किल नहीं लगेगा। डू आई नीड टू रिवाइज एनीथिंग? क्लियर है ना?
इज इट क्लियर? जस्ट रिप्लाई मी। मैसेज आ गई? हाँ बिल्कुल। हाँ वर्ब्स ऐसे ही पढ़ने हैं। इस पर खाली वर्ब्स पत करो सुहू रटा मारेंगे वर्ब्स पे ना, वर्ब्स को समझना है। we need to understand verbs, we need to understand Arabic verbs, then our base will get build up. तो क्या बना? खराजा, खराजा, खराजू, खराजत, खराजता। Now let us start another, give a try, huh? Let us give a try on zahaba. Zahaba means he went, huh? zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata। इतना तक ही हम ट्राई करेंगे, हाँ जितना हमने पढ़ा। नाउ गिव ट्राई ऑन जलसा। जलसा, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता। Jalasa means he sat, huh? Jalasa means they too sat. Jalasu means they all sat, huh? Now it is kataba. Kataba means he wrote. Now give a try. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata. ठीक? Now give try on nasara. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata. Now give try on zaraba. It will become zaraba, zaraba, zarabu, zarabat, zarabata. Now let us give and try on uh, raja'a, 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 raja'u, raja'at, raja'ata। ठीक है? ये आप ऐसे भी देखना, वर्ब्स बहुत सारे हैं वो, इतना तक आप इतने ही तक ही। हुना पे आप अभी मत जाना, क्योंकि हुना जो है इसके साथ हम एग्रीमेंट देखेंगे, ये क्या बोल रहा है कि कौन सा एग्रीमेंट हमारे साथ करना है। इसके साथ पहले एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद चलेंगे। हाँ जलसा, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता। ऐसे ही ये सारे हैं। हाँ आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह ताला करिन तुहंद वक्त इबादतस मज शामिल, बे करिन एक्सेप्ट सोन मेहनत, ये थयन कबूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।